Dear children, we are studying the Gandhian era. After the protest against the Simon Commission in 1999, a Congress convention started in Lahore in December 1929. Pandit Jawaharlal Nehru was the president of the convention. He declared that there is only one aim before us, and that is of total independence. In this convention, Congress accepted the proposal of total independence. On the midnight of 31st December 1929, Congress President, in the presence of a huge crowd, hoisted the flag of total independence on the bank of River Ravi. Congress took the decision of observing 26 January 1930 as the Total Independence Day. Thus, Independence Day was celebrated with zeal and enthusiasm all over the country. अब नॉन वायलेंस जो आंदोलन चल रहा था उसके पश्चात स्वतंत्रता का जो संघर्ष था उसको लेकर कांग्रेस में मतभेद हो गए थे और जैसे कि आपको मालूम है कि एग्रेसिव लीडर्स थे वो अलग हो गए थे और जो मॉडरेट्स थे वो अलग हो गए थे। उसके बाद इन परिस्थितियों में जो कुछ कांग्रेस से अलग हुए लीडर्स थे उन्होंने अपने एक पार्टी बना ली और उसका नाम रख दिया स्वराज पार्टी। अब दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का कन्वेंशन हुआ, अधिवेशन हुआ और उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष थे और उन्होंने बोला कि अब हमें पूर्ण स्वाधीनता चाहिए और इसका प्रस्ताव उन्होंने रखा। तो 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष की उपस्थिति में बहुत सारी भीड़ थी, जनसमूह था, उसके सामने पूर्ण स्वाधीनता का जो फ्लैग था, जो ध्वज था, उसको लहरा दिया। कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण टोटल इंडिपेंडेंस डे, पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया और पूरे देश में बहुत उत्साह के साथ इसे मनाया गया। गांधी जी wanted that government should consider the reduction in the rate of exchange, reduction of land revenue, should put total ban on drinking liquor, should refrain from violence, keep control on secret service department, 50% reduction in military expenses and reduces the import of cloth. So, Gandhi ji put forward 11 demands before Lord Irwin, but Lord Irwin, who was the viceroy on that time, rejected all the demands. Gandhi ji started civil disobedience movement as per plan. अब गांधी जी चाहते थे कि जो हमारा देश है उसमें जो अंग्रेज ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरह जो टैक्स वगैरह लगाए गए हैं उनको कम किया जाए, तो उन्होंने 11 डिमांड्स रखी लॉर्ड इरविन के सामने उस वक्त, जो कि वायसराय था, और उसने सारी डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया, उनको मानने से मना कर दिया। तो ये पहले ही प्लान हो चुका था कि यदि ये मांगे नहीं मानी जाती हैं तो फिर उनके खिलाफ में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया जाएगा और ऐसा ही किया गया। So Gandhiji decided to launch the civil disobedience movement by breaking the SALT law. On 12th March 1930, Gandhiji along with his colleagues started for Dandi at Gujarat seashore, which is about 200 miles from Sabarmati Ashram. People welcomed him. On this way, let Reus at seashore to march, and he reached Dandi on 5th April. On 6th of April, Gandhiji and his colleagues broke the SALT law and started the movement. अब जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था वह SALT लॉ को तोड़कर स्टार्ट किया गया। गांधीजी ने 12 मार्च 1930 को अपनी जो यात्रा थी गुजरात के दांडी के लिए शुरू की साबरमती आश्रम से, और लगभग 200 मील की यात्रा करके वो 5 अप्रैल को जो सीशोर था गुजरात का, दांडी जो स्थान था गुजरात का, वहां पर पहुंचे और उन्होंने नमक कानून तोड़ा 6 अप्रैल को नमक उठाकर। इस तरह से सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का उसको किया गया, आंदोलन का आरंभ किया गया। As soon as Gandhiji has defied the law, people all over the country started defying the British rule.
The movement had reached its peak by June 1930. Lathi charge, imprisonment, and fines for defiance became very common occurrence. Even wearing khadi and wearing Gandhi topi was considered as offense. Congress was declared an illegal organization by the British government. अब जैसे ही गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, पूरे देश में जो ब्रिटिश रूल थे उनकी अवज्ञा स्टार्ट हो गई। जगह जगह लोगों ने जो ब्रिटिश कानून थे उनको तोड़ना स्टार्ट कर दिया। जो लिकर शॉप्स थे उनके सामने धरना देना शुरू कर दिया और भी बहुत सारे उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिए। 1930 जून में यह आंदोलन बिल्कुल पीक पर पहुंच गया। लाठी चार्ज के द्वारा दबाना या जेल भेज देना या फिर फाइन करना, ये बहुत छोटी बातें रह गई थी इस आंदोलन को दबाने के लिए। यहां तक कि खादी पहनना और गांधी टोपी लगाना भी अब अपराध माना जाने लगा और कांग्रेस को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इलीगल ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया। In May 1930, गांधी जी was arrested and imprisoned in यरवदा जेल in पुणे। अब गांधी जी को पहले ही मई 1930 में जेल में भेज दिया गया था, पुणे की यरवदा जेल में। और उसके बाद इस आंदोलन की लीडरशिप सरोजनी नायडू, तैयब जी आदि ने की। और इसके बाद मीनवाइल देयर वाज अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन इन 1930। This became evidence in the conference that if there was to be a solution of this problem, cooperation of Congress was highly needed. In this scenario, government released Gandhiji from jail unconditionally on 26th January 1931. अब 1930 को इसी बीच लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुआ और गोलमेज सम्मेलन में यह बात हो गई कि यह बात साफ हो कि यदि भारत पर राज करना है तो भारत की समस्याओं की यदि समाधान करने हैं तो इसके लिए कांग्रेस का कोऑपरेशन सहयोग जरूरी है। और इसलिए गांधी जी को 26 जनवरी 1931 को बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्त के छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया। और जेल से छूटने के बाद 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट जो था वह सामने आया। और इस पैक्ट के अनुसार जो लोग हिंसा में शामिल नहीं थे उनको जेल से रिहा करने का वादा किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। इसके साथ साथ यदि कोई पर्सनली अपने खुद के लिए नमक बनाता है तो उसे इसकी परमिशन दी गई। और इसके साथ साथ शांतिपूर्ण तरीके से यदि लिकर शॉप्स के बाहर कोई धरना देना चाहता था तो उसकी अनुमति भी प्रदान की गई। पहले नमक पर बैन था, नमक को कोई बना नहीं सकता था, उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकार था। लेकिन बाद में नमक तोड़ो आंदोलन के बाद से फिर गांधी इरविन समझौते में यह जो बैन था ये व्यक्तिगत उपयोग के लिए नमक बनाने की परमिशन दे दी गई। नाउ फास्ट अनटू डेथ पुणे पैक्ट। ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज on one side using the policy of exploitation and on the other side was using divide and rule policy. The government offered separate reserve seats to Dalits for contesting elections. This was a policy to entice the Dalits and drift them away from Hindus. Gandhi ji strongly opposed this move of the British government. अब एक तरफ तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वह एक्सप्लॉइटेशन की नीति अपना रही थी, दमन कर रही थी, लोगों को जेल भेजना, लाठीचार्ज करना और भी दूसरी चीजें। और दूसरी तरफ वो फूट डालो और राज करो की नीति, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी भी अपना रही थी। और इसके चलते उन्होंने क्या किया, जो दलित थे उनको अलग से इलेक्शन के लिए गवर्नमेंट सीट्स ऑफर कर दी और इसमें उन्होंने हिंदुओं को और दलित्स को अलग करने का प्रयास किया और उनको इस तरह से सीट्स देकर उन्हें लालच में डाला। और गांधी जी इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ गए और उन्होंने इसका बहुत विरोध किया। गांधी जी के विरोध के बावजूद भी मैकडॉनल्ड के जो सांप्रदायिक लोग थे, सांप्रदायिक निर्णय की उन्होंने गवर्नमेंट ने घोषणा कर दी कि अब 1932 से जो है सीट्स दलित्स के लिए वहां पर दी जाएंगी, इलेक्शन में सीट्स दलित्स के लिए रिजर्व की जाएंगी। गांधी जी ने इसका विरोध किया और फिर उन्होंने फास्ट अनटू डेथ स्टार्ट कर दिया। उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि जब तक मेरी सांस रहेगी मैं इसके विरोध में आमरण अनशन करूंगा। दिस एंटायर कंट्री वॉज इन the entire country was in anxiety due to Gandhiji fast unto death.
To find a solution at such a delicate moment, an agreement was done in Pune between high caste Hindus and Dalits. This agreement was done between Gandhiji and Dr. Bhimrao Ambedkar. Government accepted this agreement and finally Gandhiji ended his fast on 2nd of May 1933. Gandhiji was released from prison. अब जब गांधी जी ने आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया तो पूरा देश चिंता में डूब गया, चाहे वो हिंदू हो, चाहे दलित हो, चाहे कोई भी हो। तो उन्होंने एक समझौता करने की कोशिश की जिससे कि शांति बन जाए और गांधी जी का उपवास टूट जाए। तो पूना में एक समझौता किया गया जिसमें दलित और सवर्ण दोनों लोगों ने मिलकर के सर्वसम्मति से इस समझौते को किया। यह समझौता गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने समझौते को स्वीकार कर लिया। जब गांधी जी को जब ये पूना एक्ट हुआ तो गांधी जी को उन्होंने फिर से जेल में डाल दिया था। तो गांधी जी ने फिर अपना अनशन समाप्त किया और 2 मई 1933 को गवर्नमेंट ने गांधी जी को फिर से रिहा कर दिया। इन 1935 गवर्नमेंट एनफोर्स्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब 1935 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत सरकार अधिनियम लागू कर दिया, लेकिन इसमें कहीं भी टोटल इंडिपेंडेंस की बात नहीं कही गई थी। तो और भी जो दूसरी पार्टीज बन गई थी, पहले ही जैसे बात हो चुकी है कि एग्रेसिव जो हमारे लीडर्स थे उनकी पार्टी अलग थी, और भी जो लोग थे उनकी पार्टी अलग थी। तो उन सभी ने इसकी बहुत आलोचना की। और देयर वर provincial assembly elections in 1937 which Congress won and formed own ministries. अब उसी बीच में वहां पर प्रांत के जो विधानमंडल होते हैं उसमें चुनाव करवाए गए और जो कांग्रेस थी उसने उसमें विजय प्राप्त की और फिर अपने मिनिस्ट्रीज का, अपने मंत्रिमंडल का निर्माण किया। Now, Quit India movement. In 1942, on the political stage of India, a historical movement started, which was known as Quit India movement. Gandhiji said, I am not going to accept anything less than total independence. We shall either do or die. अब 1942 में एक ऐतिहासिक आंदोलन आरंभ हुआ जिसका नाम भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको जाना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से। और गांधी जी ने उसमें कहा कि पूर्ण स्वाधीनता से हमें जरा सा भी कम नहीं चाहिए, मैं पूर्ण स्वाधीनता से जरा से भी कम में संतुष्ट होने वाला नहीं हूं। या तो करो या मरो, या हम करेंगे या हम मरेंगे। और 8 अगस्त को रात में यह प्रस्ताव बहुमत से पारित हुआ था और इसके बाद गांधी जी ने इसके लिए आंदोलन स्टार्ट कर दिया। The importance of Quit India movement is that this made freedom for the country an instant demand. अब क्विट इंडिया मूवमेंट का सबसे बड़ा महत्व यह रहा कि इसमें भारत की जो इंडिपेंडेंस थी उसको लोगों, उस आंदोलन ने उसको तात्कालिक मांग बना दिया। मतलब कि वो इंस्टेंट डिमांड बन गई कि हमारे देश को अब आजादी चाहिए ब्रिटिशर्स से। Before the movement started, on the night of 9th August, government arrested leaders like Mahatma Gandhi, Maulana Azad, Sardar Patel, Jawaharlal Nehru, Sarojini Naidu and other members of working committee and sent them to Pune. अब ये मूवमेंट स्टार्ट होता उसके पहले ही जो सारे नेता थे उनको पुणे की जेल में भेज दिया गया। So the agitators damaged the means of transport, attacked police stations, defied every law. Owing to the harsh reactions and suppression from police, this agitation overstepped its principle of non-violence too. अब इस गवर्नमेंट जो नेता थे उनकी गिरफ्तारी के बाद ये जो लोग थे उन्होंने ट्रांसपोर्ट जो थे मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट उनको डैमेज कर दिया, पुलिस स्टेशंस पर अटैक कर दिया और भी बहुत सारी चीजें की। तो उससे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने उसको सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया, लाठीचार्ज और भी बहुत सारी चीजें। और ये सारी जो चीजें थी ये नॉन वायलेंस का भी विरोध कर रही थी। जो प्रिंसिपल था नॉन वायलेंस का उसके खिलाफ भी ये सारे स्टेप्स थे। So police opened fire indiscriminately on agitators, charged them with lathis and arrested thousands of them.
पुलिस ने इन सबको बहुत ही क्रूरता के साथ इन सब के ऊपर कहीं लाठी चार्ज किया, कहीं ओपन फायर किया और इसको उन्होंने दबाया, इस आंदोलन को दबाया. So the reaction of British government was quite dismissive. Churchill blamed Congress for the violence, but Gandhiji blamed it on the suppression action by द गवर्नमेंट. अब चर्चिल ने इस सब का जिम्मेदार कांग्रेस को बताया, जो कि उस समय नॉन वायलेंस, गांधी जी के नेतृत्व में नॉन वायलेंस की थीम पर चल रही थी. और वहीं गांधी जी ने इसे, जो गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट सपरेशन का एक्शन कर रही थी, लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही थी, उसको जिम्मेदार उन्होंने माना. ऑन 10 फरवरी 1943 गांधी जी स्टार्टेड फास्ट फॉर 3 वीक्स. अब गांधी जी ने ये हिंसा के विरोध में जेल में ही 3 दिन का उपवास स्टार्ट कर दिया 1943 को. His condition became serious but still continued it by his willpower. While he was in prison on 23rd February 1944, his wife Kasturba died. Gradually, the movement slowed down. On 6th May 1944, government released Gandhiji from jail due to his ill health. गांधी जी की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि इतना व्रत कर सकें, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी विल पावर से उस व्रत को संपन्न किया. और लेकिन 23 फरवरी 1944 को गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी जी की मृत्यु हो गई और फिर धीरे धीरे ये मूवमेंट जो था वो शांत हो गया, डाउन पड़ गया. 6 मई 1944 को गांधी जी को जेल से उनकी तबीयत को देखते हुए रिहा कर दिया गया. The Quit India movement could not succeed in his declared goal, but it was successful on one account, that British government realized that the demand for freedom by Indians cannot be ignored for a long time. Because of this movement, the international opinion was formed against England. भले ही 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था वह अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन यह एक दृष्टि से सफल भी रहा, क्योंकि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट यह अच्छी तरह से समझ गई थी कि अब ज्यादा समय तक वह ये जो स्वाधीनता की मांग है इसको इग्नोर नहीं कर सकेगी. और इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल प्रेशर था वो भी इंग्लैंड के ऊपर आ गया था कि ये जो यहाँ पर राज कर रहे हैं ये गलत है. सो स्टूडेंट्स, we will read about the revolutionary nationalism in the next video. In this video and the previous video, we have completed the Gandhian era and the movements stand by the Gandhijis.